आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। नोटिसेबल मुझे तब हुआ जब मेरे फ्रेंड्स या मेरे खुद के फैमिली मेंबर्स दे टोल्ड मी कि अभी आपकी तो हेयर लाइन रिसीड हो रही है। I finally decided to do my hair transplant of QHT because one, they are very professional, and this is me who is very afraid of syringes and injections. So, hello everyone, my name is Ayush. I am from Dehradun, and I did my hair transplant on 10th of July. So today is my 4th PRP. I started noticing excessive hair fall around 5-6 years back. And I think that मेरा hair fall is mainly due to the profession which I am and some genetics also. Noticeable मुझे तब हुआ जब मेरे friends या मेरे खुद के family members they told me कि अभी आपकी तो hair line recede हो रही है. तो and also whenever I took shower I used to see excessive hairs on my hands when I used to shampoo. So इन सब कारणों से I got a bit stressed and then I decided that yes, something needs to be done. उसके बाद जैसे सभी लोग हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जो जूझते हैं, they do home remedies, तो वही सब मैंने भी किया, थोड़ा बहुत home remedies. I consulted a few doctors, then took medicines, but it was all, I think it was all temporary. Like 1-2 महीने तक मेरा हेयर फॉल रुकता था, but it was not a permanent solution to it. Then finally I decided to do hair transplant. Because you only regret the chances that you don't take in life. So finally then I decided that yes, now I'll go for the hair transplant, and I told my parents. My parents were a bit skeptical about it in the initial stages, like everyone else's. They did say that don't do it, it's not that big an issue. But slowly they also understood that it's just a minor surgery, not a big procedure, and then they agreed to it, and then I did it. जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया तो देयर वर अ लॉट ऑफ क्लिनिक्स दैट वर देयर इन माय होम सिटी आल्सो एंड दिल्ली, मुंबई एंड आल्सो अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज. I finally decided to do my hair transplant of QHT because one, they are very professional, and also the result here which I have seen in the YouTube, also from my friends and the past record if you take, then QHT has quite an impressive record. So I decided to do from QHT. So जब मैं अपना ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक आया था, so the doctors were very professional. उन्होंने पूरा प्रोसीजर मेरे को पहले बिठा के समझाया that okay, this is how the surgery is going to do. It is going to take 2 to 3 days, proper 2 to 3 days from morning 8 o'clock till evening 6 to 7 o'clock. So when I came here for the first time, the doctors were very professional. They guided me very well, and they told me the entire procedure, and then they sent me after. Then first step in the transplant procedure is they draw a hairline on your head, and then they see कि ये hairline आप पे कैसी लग रही है. Every step they consult from you that is it okay, are you happy with the hairline. So when they asked me whether I was happy with my hairline, I saw that the doctor has done a pretty good job, and उन्होंने काफी अच्छे से marking किया था. They knew what my concern were. And I was happy with how the doctors gave me a hairline. उसके बाद they take you to OT where your first day of procedure happens. After implanting 5,000 grafts, you will again come to the doctor where he will guide you for the next 2-3 days, as they are the most crucial days of the transplant. They will tell you in return what all the procedures you have to follow once you go home. थोड़ा स्वेलिंग का जो मेरे को इशू था, I discussed with the doctors and they told that थोड़ी बहुत स्वेलिंग होना is natural. They put a band-aid on your forehead so that the swelling does not recede, which eventually it did. After 4-5 days the swelling also went away, and उसके बाद जब आप once you are at your home, and then every day the QHT team will call you, they will text you on WhatsApp, they will personal message you on your number whether or not you are feeling okay, all is okay, any concern. They will ask your everyday update of the head, and also when you have to wash your hair and how you have to wash your hair. My overall experience in QHT is very nice, and I would advise everyone who is thinking of getting a hair transplant or who is
in a dilemma that whether or not you should go ahead with the transplant or not, my personal suggestion to you guys is you should definitely go for it. It's a completely painless procedure, and there are many myths. Until the time we don't actually come to the clinic and ask from the doctors, there are many myths in our mind that will remain there in your mind if you do not ask and do something about it. Okay, in the end, I just want to say QHT that you're doing a good job and keep up the good work. अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। तो मेरी हेयर लाइन बहुत पीछे जा रही थी। फादर की साइड से वो हेयर लॉस का चलता आ रहा था, हेरिडिटी जिसे कहते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी शुरू में। तो घरेलू नुस्खे ट्राई किए थे, किसी से कुछ असर नहीं होता। पेन होगा, एनेस्थीसिया लगेगा, बहुत पेन होगा, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ बेटर ऑप्शन। मेरा नाम सुमित है, मैं दिल्ली से आया हूँ और आज मेरी सेकंड PRP है। तो मेरी हेयर लाइन बहुत पीछे जा रही थी, तो मुझे लगता था लुक्स ख़राब हो रहे हैं उसकी वजह से। तो मुझे लगा मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि फादर की साइड से वो हेयर लॉस का चलता आ रहा था, हेरिडिटी जिसे कहते हैं। तो मुझे लगा ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, तो मैंने ट्रांसप्लांट कराया। और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी शुरू में। तो बहुत कहीं जाता था तो बहुत फ़ोटो खिंचवाने में बहुत अजीब लगता था। तो मुझे लगा कि हाँ एक बार ट्राई करना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए, तो ट्रांसप्लांट कराना ही चाहिए। नेचुरली अगर मेरे हेयर ग्रो हो सकते हैं तो उसके लिए मैंने कंसल्ट किया अपने ही डॉक्टर से। बड़ी सारी कंसल्टेशन, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ट्राई करी, बट उससे कुछ असर मुझे दिखा नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ बेटर ऑप्शन। तो फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन बनाया कि नहीं, मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत रेमेडीज़ ट्राई करी थी, बहुत घरेलू नुस्खे ट्राई किए थे, किसी से कुछ असर नहीं होता। अगर आपकी हेयर रिसीड हो रही है, हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो इसलिए मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा। तो मैंने QHT को इसलिए चूज़ करा क्योंकि एक्चुअली मैं यूट्यूब बहुत इंटरनेट सर्फिंग करता हूँ। तो उसमें मैंने वीडियो देखी थी, हमारे जो बॉलीवुड एक्टर हैं राजपाल यादव, तो उन्होंने भी अपना ट्रांसप्लांट यहाँ से कराया था, QHT क्लिनिक से। तो जब मैंने उनका रिज़ल्ट देखा 6 मंथ के बाद, तो बहुत नेचुरल था, वो लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है। तो मुझे लगा मुझे भी यहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए, और मैंने यहाँ पे कंसल्ट किया। यहाँ का स्टाफ बहुत ही बहुत ही अच्छा है, दे विल गाइड यू ट्रूली, एंड मुझे लगा कि यही बेस्ट है। तो जब मैं आया ट्रांसप्लांट के लिए, जो मेरा पहला दिन था, बहुत ही अच्छा फील कराया मेरे को। मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत डर था पेन होगा, एनेस्थीसिया लगेगा, बहुत पेन होगा, यहाँ से ग्राफ्ट्स निकालेंगे एंड यहाँ लगेंगे, तो बहुत डर था तो डॉक्टर ने मुझे बहुत ईज़ फील कराया, और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा ड्यूरिंग सर्जरी मुझे मील्स प्रोवाइड कराई गई, और
ड्यूरिंग सर्जरी मुझे पूछा गया बहुत बार कि आपको पेन तो नहीं हो रहा, यू नो। तो मेरे टोटल 2700 ग्राफ्ट्स मेरे लगे थे, जो कि डॉक्टर सर ने मुझे बताए थे। और मेरी जो टेक्निक हुई थी हेयर ट्रांसप्लांट की, वो QHT टेक्निक से हुआ था। और मैं ये बोलूँगा, लोग सोचते हैं कि बहुत पेन होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतना पेन नहीं होता, सिर्फ बेरेबल पेन होता है, सहने लायक पेन होता है, डेट्स इट। तो QHT के टीम का फॉलोअप जो मैं बोलूँगा वो बहुत ही कमाल का है। मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे कुछ कंसल्ट करना पड़ता है QHT अपनी मेडिसिन से रिलेटेड, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। तो मैं सीधा कॉल करता हूँ, टाइम पे कॉल उठाते हैं, चाहे उन्हें 3 बार कॉल करो आप, या 4 बार कॉल करो, 5 बार कॉल करो, दे विल ऑलवेज पिक योर कॉल ऑन टाइम एंड दे विल गाइड यू वेल। तो शुरू में तो जब ट्रांसप्लांट हुआ था उसके 8 दिन बाद तो जैसे हेयर्स बहुत ही माइल्ड से ग्रो हो रहे थे, तो मैं थोड़ा वो हो रहा था, परेशान हो रहा था कि ऐसा ऐसे क्यों हो रहा है। तो मैंने कॉल भी किया था यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे जो हमारे यहाँ के QHT के जो कॉल सेंटर वाले हैं, तो उन्होंने मेरी बात डॉक्टर से भी कराई डायरेक्ट। तो डॉक्टर मैम ने मुझे वो कंसल्ट करा, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, एटलीस्ट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 6 months फॉर योर ट्रांसप्लांटेशन, परफेक्ट ट्रांसप्लांटेशन। सो अभी मैं उसी वेटिंग पीरियड पे हूँ। अभी आप मेरा देख सकते हैं, इतने अच्छी ग्रोथ तो आई है। लेट्स सी और आगे देखते हैं क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने नेक्स्ट PRP को लेके, एंड मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट PRP में। थैंक यू। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। 2 साल पहले से मैंने हेयर पैच जरूर लगवाया था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती थी। आजकल का माहौल देखते हैं, आपके किसी के अगर बाल झड़ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि हंसी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि अरे आपके तो बाल नहीं हैं, बाल गिर गए, आपकी एज ज़्यादा हो गई। और भी मैंने क्लिनिकों पे बात करी थी, लेकिन वहाँ के लोगों की बातों से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था, मुतमईन नहीं हो रहा था मैं, एक तरीके से मुझे भरोसा नहीं आ रहा था। काफ़ी अच्छे से मेरी बातचीत हुई है सबसे, स्टाफ से, बड़े अच्छा स्टाफ है, बड़ा अच्छे से बात करते हैं। सब बातें जो भी हमारे अंदर जो भी डाउट होता है दिमाग में, वो सब बातें करते हैं, हमें सब समझाते, कोई दिक्कत नहीं। आप सब लोग भी आइए यहाँ ट्रांसप्लांट कराइए, बड़ा अच्छे लोग हैं सब स्टाफ। अब आगे से किसी के भी सामने आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। जी, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, मैं बरेली UP से हरिद्वार आया हूँ अपना QHT क्लिनिक पर हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। मेरी एज 35 है। ये मुझे लगभग 5 साल पहले से हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरे बाल झड़ने लगे, और अब ये कंडीशन है कि यहाँ सेटों से मेरे बाल बिल्कुल गिर चुके हैं। ये दिक्कत मुझे बहुत टाइम पहले से थी, मैं काफ़ी समय से मन बना रहा था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं, पर मुझे कोई अच्छा क्लिनिक मिल नहीं पा रहा था। अब जाकर कहीं मुझे सही क्लिनिक मिला, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ QHT क्लिनिक पर। मैंने सर इसका कोई ट्रीटमेंट तो किसी डॉक्टर से लिया नहीं, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे पता था कि कुछ दवाइयाँ लेने के बाद भी बालों में वो रिजल्ट आता ही नहीं है। इस वजह से मैंने किसी डॉक्टर से कोई दवाई नहीं खाई। 2 साल पहले से मैंने हेयर पैच जरूर लगवाया था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती थी, समय की दिक्कत होती थी, हर 10वें दिन 15वें दिन सर्विस कराने जाना पड़ता था। फिर गर्मियों में पसीना आता था, खुजली मचती थी, इस चीज़ की काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मुझे कोई अच्छा क्लिनिक मिले, जिस जगह से मैं जाके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकूं। बहुत दिन के बाद जाकर आज QHT क्लिनिक मिला मुझे हरिद्वार में, जो आज मैं आया हूं यहाँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छे से बात करते हैं ये लोग, और यहाँ के रिज़ल्ट भी सर ने मुझे दिखाए थे, रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो यहाँ आकर मैं काफ़ी खुश हूँ। ये जो मेरा गंजापन जो आया, तो इसकी वजह से आजकल का माहौल देखते हैं, आपके किसी के अगर बाल झड़ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि हंसी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि अरे आपके तो बाल नहीं हैं, बाल गिर गए, आपकी एज ज़्यादा हो गई,
मतलब इस तरीके की बातें होती थी जिसकी वजह से काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। लेकिन आज जब ट्रांसप्लांट होने लगे, ये सुविधा जो हमारे देश में आ गई है, तो सबको चाहिए कि जिसके भी बाल गिरे हैं, झड़ गए हैं, तो वो आए ट्रांसप्लांट कराएं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल बाल लगेंगे आपके और अच्छा फील करेंगे आप। अब आगे से मतलब किसी के भी सामने आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। QHT के बारे में मुझे ऐसे पता चला कि मैं फेसबुक चलाता हूँ, फेसबुक यूज़ करता हूँ और यूट्यूब चलाता हूँ, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो पड़ी रहती हैं सारे क्लिनिकों की, दिल्ली की, जयपुर की, हरिद्वार की, मतलब हर शहर की वीडियो पड़ी रहती हैं वहाँ पर। तो मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि कौन कौन से क्लिनिक के कैसे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, और कुछ प्राइस के बारे में भी जानकारी ली। तो कुछ प्राइस मतलब क्लिनिकों पे बड़ा कम, लेकिन वहाँ के लोगों की बातों से मुझे मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, मतलब मुतमईन नहीं हो रहा था मैं, एक तरीके से मुझे भरोसा नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे आप अपनी रिजवान जी अपनी फ़ोटोज़ दीजिए, तो मैंने व्हाट्सएप पे उन्हें अपनी फ़ोटोज़ सेंड करी, तो उन्होंने बताया कि आपके 5000 ग्राफ्ट लगेंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो बोले आपके पास जब समय हो तो आप आइए यहाँ पे और करा लीजिए ट्रांसप्लांट। तो मैं आज आ गया हूँ यहाँ पे। काफ़ी अच्छे से मेरी बातचीत हुई है सबसे, स्टाफ से। बड़े अच्छा स्टाफ है, बड़ा अच्छे से बात करते हैं। सब बातें जो भी हमारे अंदर जो भी डाउट होता है दिमाग में, वो सब बातें करते हैं, हमें सब समझा। कोई दिक्कत नहीं, आप सब लोग भी आइए यहाँ ट्रांसप्लांट कराइए। बड़ा अच्छे लोग हैं, सब स्टाफ अच्छे। मैंने QHT की वीडियो देखी तो कुछ लोगों के मतलब रिजल्ट बहुत अच्छे थे यहाँ पर। तो मैंने वही सोचा दिल में कि मेरा भी रिजल्ट ऐसा ही आए। कुछ और भी क्लिनिकों के रिजल्ट देखे थे मैंने, तो कुछ ट्रांसप्लांट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत बिगले बाल होते हैं, मतलब देखते ही दूर से लगते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए हैं, मतलब अजीब से लगते हैं दिखने में। इस वजह से काफ़ी दिन मैंने मतलब सोच में पड़ा रहा कि कराऊं या ना कराऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो मेरा भी रिजल्ट ऐसा आए। मैं ये सोचता था कि मेरा रिजल्ट अच्छा आए, डेंटिसी अच्छी हो, घनापन हो और हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरल लगे। कुछ क्लिनिकों पे ऐसे भी मैंने वीडियो देखी है जिनकी हेयर लाइन दिखने में अच्छी नहीं लगती। मैं यही उम्मीद लेकर आया हूँ कि यहाँ का स्टाफ जो भी काम करेगा, डेंटिसी भी अच्छी होगी, हेयर लाइन भी अच्छी बनाएंगे और ग्रोथ वालों की बढ़िया होगी, घनापन होगा। बस इसी उम्मीद से मैं यहाँ आया हूँ। मुझे उम्मीद भी है कि ऊपर वाले ने चाहा तो बढ़िया ही रिजल्ट आएगा। तो ये था मेरा अब तक का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। QHT क्लिनिक के साथ मेरी सर्जरी होगी और जैसे ही सर्जरी होगी एक बार फिर आपके सामने मैं आऊँगा, और तब तक के लिए अलविदा। आप देख सकते हैं मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है, जो कि 2 सेशन में हुआ था। कल 10 घंटे तक मेरी सर्जरी हुई थी, आज 5 घंटे हुई है। आज मेरा पूरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है। डॉक्टर भी बड़े अच्छे हैं, बीच बीच बात करते हैं, सब आते हैं, देखते हैं, भालते हैं। फिर लंच का टाइम होता है तो लंच भी कराते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, बात करते रहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए ये रहा मेरा हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इंतज़ार है मुझे अपने रिज़ल्ट आने का, जो कि PRP कराने के लिए मैं समय समय आता रहूँगा, और जैसा भी मेरा रिज़ल्ट आएगा मैं आप लोगों के सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।